So the topic is, our next topic is conversion into double entry, and there are certain steps through which any question or any business which maintains single entry system or which are not maintaining proper books of accounts or proper double entry bookkeeping, they can be converted, their business can be converted, their financial statements can be converted into double entry. That is known as conversion into double entry. So conversion or double entry, there are certain steps to solve this question. There are certain steps to solve the question or to convert the incomplete records into complete records. Complete record means proper set of financial statements, and proper set of financial statements means income statement and balance sheet, right? हम देखते हैं. Step number one. Step number one is this: whatever what you have what type of data you have been given in the question. You will be given assets and liabilities at the start of the year. You will be given assets and liabilities at the end of the year, and you will be given data and expenses, incomes for the year, for the current year. Hello, sir. Yes, अस्सलाम वालेकुम जी. हम ये पढ़ रहे हैं कन्वर्जन टू डबल एंट्री. आपके सामने बता रहा होगा, ठीक है? पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप, you can see from your book notes also. You have my book with you. You can see from the book notes also. It's up to you. एक ही बात है. पेज नंबर वनाहिल आप बता दो या हनान आप बता दो कि बुक में कहाँ पे है. हनान पेज नंबर बता दो. एक मिनट. मेरा पेज नंबर 275 है, उसके आसपास ही होगा. This is the first page for our chapter single यही है. complete records. यही है 275. जी. Step number one is prepare opening statement of affair to find opening capital. Opening statement of affairs means balance sheet, because statement of affair is equal to balance sheet. And how to find capital through balance sheet? We know that opening asset minus opening liabilities will be equal to capital. Here it is written, the formula of how to find opening capital by preparing opening statement of affair. And how we'll find that? Opening asset minus opening liabilities, we will get the amount of capital which is known as opening capital. Yes, sir. यानी कि जो स्टार्ट का डाटा आपको दिया होगा, assets which are given at the start of the year, we will subtract all liabilities at the start of the year to find the amount of capital. Next step, number two, is prepare sale ledger control account to find credit sales or closing debtors or cash received from debtors. But you just need to think about the credit sales. The total sales equal to credit sales plus cash sales. If cash sales are given in the question, you will add credit sales into cash sales to find total sales. How to find credit sales? You have to prepare sale ledger control account. Control account कैसे बनेगा? You will write balance brought down. This is the trade receivable at the start of the year, or trade receivable at the beginning of the year, or balance brought down. Then you will write balance carried down, trade receivable at the end of the year. Cash received from debtors will come on the credit side, because the entry for cash received with cash to trade receivable. So trade receivable is credited, that's why it will come on the credit side because of cash received. And then we'll make the total of the credit side and we'll subtract the debit side. We will find the amount of credit sales. But on the credit side, there can be some other things which can be written, like discount allowed, sales return, and bad debts. If they are given in the question, we will write it in the sale ledger control account. Credit sales, sales return, discount allowed, and bad debts. This is how we will be able to find credit sales. And if cash sales is given, then credited sales and cash sales will be equal to total sales. The third step is to prepare purchase ledger control account to find credit purchases. We will prepare PLCA. Brought down will come on the credit side, because these are the trade payables at the start of the year, or trade payables at the beginning of the year, or trade payables on 1st January. This is trade payables at 31st December or at the end of the year. They will be written on the debit side, balance carried down.
cash paid to trade payable is on the debit side because the entry for cash paid to trade payable is trade payable debit and cash credit. So trade payable is debit because of cash, or debit side our trade payable are decreasing and on the credit side our trade payables are increasing. दोनों sides का difference लेंगे, you will get the amount of credit purchases which is equal to total purchases normally in every question. आगे next step 4, important note, all expenses and income accounts are closed with the name income statement, and all assets and liabilities account are closed with the name balance carried down. We know that sale ledger control account and PLCA are asset and liabilities account. That's why they are closed with the name balance carried down. But income expense account are closed with the name income statement, and because their balances are transferred to the next financial year and so on. क्योंकि assets और liabilities के balances जो हैं वो अगले साल transfer हो जाते हैं या होते हैं, उनको हम income statement से close नहीं करते हैं. 4th step को मैं छोड़ रहा हूँ, इस वक्त मैं आ रहा हूँ 5th step की तरफ. Calculate depreciation. When cost and accumulated depreciation is given, beware of reducing balance method, because when the question asks us about reducing balance method, you know that the chapter of depreciation, reducing balance method is the difficult one. But when cost and accumulated depreciation is given, you know how to calculate depreciation. But when net book value method is used, or cost or accumulated depreciation is not given separately, then you have to use the net book value method. और net book value method का formula जो बना है वो नीचे लिखा हुआ है. You will prepare only one account. There is no separate account for depreciation and asset. We will not maintain asset account and provision for depreciation account separately. वो हम तब करते हैं जब ये दोनों चीजें दी हो नंबर 1 पॉइंट पर. नंबर 2 का मतलब है when net book value method is given, then we will prepare only asset account, but they are on net book value. Balance brought down of asset, addition या purchases, book value of asset disposal, income statement, depreciation is the balancing figure which is written with the name income statement, and balance carried down is the net book value. This is how we will calculate depreciation by taking the difference of the two sides, और वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा समझ आ जाए. इसमें हमारा बनेगा जी, सपोज कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ बनेगा मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में क्या आएगी वैल्यूज, हर चीज इसके ऊपर किस प्राइस पे लिखी जाएगी, नेट बुक वैल्यू पे. एवरीथिंग विल बी रिटन इन दिस अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू. जैसे कि ब्रॉड डाउन आएगा मशीनरी का, किस पे आएगा, नेट बुक वैल्यू पे. नेट वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब ये कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई इसमें से, डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई इसके अंदर, डेप्रिसिएशन के बगैर है. ठीक है जी, डेप्रिसिएशन के बगैर हम इसको यूज करेंगे. तो ब्रॉड डाउन आपका आएगा जी नेट बुक वैल्यू पे, फिर कैरिड डाउन यानी एसेट एट द एंड, वो भी किस पे, नेट बुक वैल्यू पे. फिर यहाँ पे आएगी एडिशन. एडिशन का मतलब है जो एसेट आपने नया परचेज किया. सपोज करते हैं हमारा ओपनिंग जो मशीनरी है यानी कि 1/1 और 31/12, फर्स्ट डेट पे आपको पड़ी हुई मशीनरी कितने की, 10,000 की, और एंड की जो मशीनरी है वो आपकी पड़ी हुई कितने की, 20,000 की. क्वेश्चन में दी हुई नेट बुक वैल्यू. डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं बताया. You will prepare only one account, which is asset account on net book value. तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे यहाँ पे कितना नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग कितनी है जी 20,000. एडिशन का मतलब है जो आपने एसेट नया परचेज किया. क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि 8,000 कॉस्ट ऑफ एसेट या 22,000 कॉस्ट ऑफ एसेट हैज बीन न्यूली परचेज्ड, या 15,000 कॉस्ट ऑफ एसेट हैज बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर. वो आ जाएगा एडिशन, कि आपने जो मशीनरी नहीं खरीदी है वो यहाँ डेबिट पे आप उसको जो है वो लिखेंगे. ठीक है जी. फिर क्रेडिट पे आपका क्या आएगा, डिस्पोजल. जैसे आपने बेचा है लेकिन वो किस प्राइस पे आएगा, नेट बुक वैल्यू से. अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कि हमें जो एसेट बेचा है इस साल उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 2,000. यू कैन फाइंड. ये जो एडिशन किया आपने ये भी नेट बुक वैल्यू पे है? हाँ जी दिया. जी ये पूरा कौन नेट बुक वैल्यू पे. मैं बताता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम. Net book value means then that depreciation has already been subtracted. तो the brought down वो जो वैल्यू ब्रॉड डाउन की है नेट बुक वैल्यू की 10,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है. ओके. एडिशन का मतलब है मनाहिल जो नया खरीदा 15,000 का, तो इस पर तो डेप्रिसिएशन भी हुई नहीं. तो इस पर तो इसका मतलब है इसकी प्राइस नए की या नेट बुक वैल्यू की सेम है.
तो इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. एडिशन इज बेसिकली द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द परचेज ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट. वो 15,000 ही रहेगी. फिर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्पोजल, जो बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू, उसकी नेट बुक वैल्यू लेंगे. कितना है वो 2,000. मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ. कैरेट डाउन नेट बुक वैल्यू पे है 20,000. जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड का, दैट इज योर डेप्रिसिएशन एंड दैट इज नोन, दैट विल बी रिटन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड वी विल राइट इट विद द नेम इनकम स्टेटमेंट एंड दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ना करो यार, ना करें प्लीज. तो 25,000 में से माइनस करें आप 2,000 और माइनस 20,000. डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपके पास? 3,000 is the amount of depreciation which you will write in the income statement. So from now onwards in this chapter, accounts from incomplete records, if and provision for depreciation is not given in the question, we will use net book value, or this is also known as valuation, depreciation at valuation. So machinery we will use brought down, addition, disposal, carried down and depreciation we will find like this. तो ये आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताया है और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, सिर्फ एसेट अकाउंट. एंड वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू नेट बुक वैल्यू मेथड. एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. दिस इज द फिफ्थ स्टेप of the same chapter which we are doing, in which we need to prepare financial statements, income statement and balance sheet from incomplete records. तो हमने सीखा है एसेट अकाउंट बनाना. क्यों बना रहे हैं सर एसेट अकाउंट? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द डेप्रिसिएशन टू बी रिटन इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस. उसके लिए बना रहे हैं. हमने पहले बनाया ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से. एसएलसीए बनाया क्रेडिट सेल्स के लिए, पीएलसीए बनाया क्रेडिट परचेजेस के लिए. फिर एसेट अकाउंट बनाया नेट बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए. अब ऐसे करेंगे. फिर हम बनाएंगे जी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट व्हिच इज द फोर्थ स्टेप. इसको बता दूं मैं? एनी प्रॉब्लम प्लीज बताएं. कोई मसला तो बताओ. नहीं सर. मनाहिल, हनान, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें. नहीं सर, क्लियर पेज कर दे. नहीं सर. ओके गुड. वापस चलते हैं जी हम अपने उसके ऊपर. फोर्थ स्टेप मैंने आपको मिस किया था लेकिन मैं उससे पहले आगे जाऊंगा. फिर स्टेप मैंने बता दिया. नेक्स्ट क्या है जी? आप बनाएंगे क्या? यू विल प्रिपेयर कैश अकाउंट इफ नीड बी. कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो साथ साथ हम आएंगे तो बना देंगे. हमने करना क्या है सर? हमने करना ये है, हमने बनानी है नाइन्थ स्टेप. देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. ये बेसिकली बनानी है. हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है और उससे हमने इसको सॉल्व करना है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रॉपर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है जी. अब हम बनाते हैं, वापस चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, व्हिच इज एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट. हियर इट इज. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एक्सपेंस और इनकम अकाउंट टू फाइंड इनकम स्टेटमेंट बैलेंसिंग फिगर. अब हम नई चीज सीखने जा रहे हैं कि हम अपना एक्सपेंस अकाउंट को कैसे डेवलप करते हैं. ये आपको याद करने पड़ेंगे. फिर आपको समझ आएगी इसकी. जैन, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो आपने देख ली थी या नहीं देख सके? नहीं सर, मुझे मेल ही आपकी आ जाइए थोड़ी देर पहले. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज देख लेना. ठीक है, आ रात हाँ. इंशाल्लाह. हम उस क्वेश्चन को कब सर मुझे भी भेज दो. हाँ, कोई भेज दूंगा. मेरे पास आपका मेल एड्रेस नहीं है. जैन आप भेज दो ना उसको. मैं आप जैन आप भेज सर दो. ओके, मैं हाँ. मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड. आई क्लोड पे कर दूं? कर दे. जी आगे चलते हैं जी. हमने बनाना एक्सपेंस अकाउंट. पूरी क्लास को मेरे लेक्चर भेजो यार, अपनी पूरी क्लास को भेज दिया करो. अपनी क्लास में 3 तो बच्चे हैं सारे. अपनी क्लास नहीं, अपने स्कूल की क्लास. उनको क्यों? एमी सर फीस देंगे तो पढ़ लेंगे. एक दो वीडियो को तभी पढ़ेंगे ना. अच्छा जी, एक्सपेंस अकाउंट में देख सकते हैं पहले जी हम कि हम कैसे इसको बनाते हैं एक्सपेंस अकाउंट को. बल्कि मेरा ख्याल है अलग अलग बनाए तो ज्यादा बेहतर. नहीं, सब कमाई नहीं बनाए. देखिए जी, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं हम. इधर आता है जी आपका एक्रूड. राइट साइड पे आपका आता है जी एक्रूड ब्रॉड डाउन. एक्रूड ब्रॉड डाउन को ओइंग ब्रॉड डाउन भी कहते हैं. आउटस्टैंडिंग ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं, एक्रूड ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं. दैट इज द एक्सपेंस पेड. पेबल है ये. इधर हाँ सर. आता है प्रीपेड ब्रॉड डाउन.
जो आप पे करेंगे एक्सपेंस वो कैश में आ जाएगा। इधर आती है इनकम स्टेटमेंट फिगर जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप फाइंड करेंगे। इधर आपका आ जाएगा एक्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आ जाएगा प्रीपेड कैरिड डाउन, राइट। ये सारी फिगर्स हैं। अब समझाने के लिए हम बताते हैं कि हम पहले कैसे सॉल्व करते थे, किसी भी एक्सपेंस अकाउंट को हम कैसे बनाते थे। सपोज करें कि ये मैं बना रहा हूँ रेंट का अकाउंट, तो ये भला अकाउंट किसका हो बनाई, दिस इज माय रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में याद कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ है कितना, 5000। This rent which is given in the trial balance shows that we have paid rent for an amount of 5000। हमने रेंट पे किया 5000 का, ठीक है जी, हमने रेंट पे किया 5000 का। दिस इज नोन एज रेंट which is given in the trial balance 5000। ओके, अब अगर नीचे क्वेश्चन में लिखा हो एडजस्टमेंट्स के अंदर, जो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते रहे आप लोग, सोल ट्रेडेड में, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडेड में आपने पढ़ा है, एक्रूड रेंट 1000, एक्रूड रेंट 1000। तो हम क्या करते थे उसको जैन, इस रेंट में क्या कर देते थे उसको, हम एक्रूड रेंट को इनकम स्टेटमेंट में क्या कर देते थे जैन, आपसे पूछ रहा हूं। अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस दिया हो 5000 और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में लिखा हो कि रेंट एक्रूड इज 1000, एक्रूड रेंट का मतलब है रेंट पेबल है, ओइंग है, तो उस रेंट को हम इस 5000 में क्या कर देते थे, माइनस ऐड कर देते थे। ये ऐसा रेंट है जो आपने अभी तक 1000 का रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया हो, तो पेबल है, तो हम उस रेंट एक्सपेंस को इसमें ऐड कर देते थे और वो 1000 करंट लायबिलिटी में भी लिखते थे, साथ करंट लायबिलिटी में भी लिखते थे और रेंट एक्सपेंस में भी लिखते थे। इसका मतलब है कि मैंने जो रेंट पे किया है वो कितना है, मेरा 5000 है, और मेरा जो एक्रूड रेंट है कैरी डाउन यानी कि जो लायबिलिटी में लिखना है मैंने, ठीक है जी, वो कितना है मेरा 1000, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1000। अब अगर आप गौर करें तो ये 1000 जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड भी हो गया है, ऑटोमेटिकली ऐड भी हो गया है, 1000 ऐड हो गया ना 5000 में, और करंट लायबिलिटी भी है ये। क्यों सर, वो बताता हूं मैं आपको। ये जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे एक्रूड ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग, पिछले साल जो आपने रेंट पे नहीं किया था वो आपका अगले साल की लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये एक्रूड ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। प्रीपेड ब्रॉट डाउन का मतलब है पिछले साल जो आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया था, दैट इज योर एसेट, वो आपका एसेट है, इसलिए डेबिट साइड पे लिखा है। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रेंट जो आपने पे किया है, कैश की फिगर ट्रायल बैलेंस दी होती है, वो कैश फिगर है, तो कैश फिगर की एंट्री क्या होगी, रेंट डेबिट एंड कैश। रेंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो एडिशन इन्फॉर्मेशन रेंट आउटस्टैंडिंग था 1000 का, वो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी है, इसलिए मैंने एक्रूड कैरिड डाउन यहाँ लिखा है। अगर प्रीपेड दिया हो रेंट एडिशन इन्फॉर्मेशन में कि प्रीपेड रेंट इज 2000, तो हम उसको रेंट एक्सपेंस में से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, क्योंकि साल के एंड में रेंट प्रीपेड है आपका, जो आपने एडवांस में पे कर दिए, लेकिन फायदा उसका आपने है, तो वो आपका क्लोजिंग एसेट होता है, तो वो एसेट है और वो क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता है 2000। अब आप गौर करें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर की वैल्यू खुद ही आपके पास निकल आएगी, अगर आप निकालना चाहें। कैसे, 5000 ट्रायल बैलेंस फिगर कैश फिगर प्लस 1000 एक्रूड जो ऐड करना है, माइनस 6000 हो गया, माइनस 2000 जो प्रीपेड माइनस करना है 2000, कितना आ गया 4000 इज योर आंसर। लिखना नहीं अभी आपने, दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट फिगर व्हिच यू यूज्ड टू राइट इन द इनकम स्टेटमेंट। अब लेकिन अब हम किससे बना रहे हैं, हम टी अकाउंट के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, टी अकाउंट के थ्रू इसको बना रहे हैं। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने एक्रूड कैरी डाउन कहा है कि लायबिलिटी है, लेकिन सर ये डेबिट पे क्यों लिखी हुई है? और भाई कैरी डाउन बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का होते हैं बेटा। अगले साल जब ब्रॉड डाउन आएगा तो ये क्रेडिट साइड पर ही लिखा होगा 1000, अगले साल जब ये प्रीपेड इधर जाएगा ब्रॉड डाउन, तो ये इस साइड पर ही लिखा होगा 2000। सही है ना, तो डेबिट बैलेंस ही है सर, प्रीपेड एक्रूड कैरी डाउन लायबिलिटी ही है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पे होते हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड की होती है। सर फिर फर्क क्या हुआ इसका, ये तो वही जो हम पहले करते रहे हैं, बस ये कि आपने इसको अकाउंट में बना के कर दिया। कैसे, दिस कैश फिगर इज द ट्रायल बैलेंस फिगर, इसकी एंट्री क्या हमने पास की थी मैं बताता हूँ।
जो ट्रायल बैलेंस फिगर इसकी एंट्री भला क्या पास हुई होगी, जो हमने ट्रायल में लिखा है इसको, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसकी एंट्री बेसिकली हमने पास की थी रेंट टू कैश 5,000। तो रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, रेंट अकाउंट के अंदर डेबिट पे आएगा ना इधर, किसकी वजह से, कैश की वजह से लिख दिया, ये ट्रायल बैलेंस फिगर। अब इसमें एक रूट था एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर कितना 1000 और प्रीपेड कितना था 2000 हमने ऐड करना था रेंट में, तो ऐड ही हो रहा है। देखें एक्रूड कैरिड ऑन यहाँ लिखूंगा मैं, साल के एंड का जो पेबल है एक्रूड रेंट, तो वो इधर लिखूंगा मैं, ऐड ही हो रहा है, और प्रीपेड कैरिड ऑन इधर आ जाएगा, वो माइनस ही हो रहा है। तो 5000 प्लस 1000 6000 माइनस 2000 4000 आपके आ गई इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो कि आप वहां लिखते हैं। और साथ में एक्रूड कैरिड ऑन अगले साल का लायबिलिटी भी बनेगा बैलेंस शीट के एंड पे, और प्रीपेड ब्रॉट डाउन एसेट भी बनेगा आपका नेक्स्ट ईयर का, और इस साल भी ये लायबिलिटी और एसेट ही है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पे लिखे होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस होता है। सर तो नई बात क्या आ गई इसके अंदर, आइए अब आपने इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करनी है इस टी अकाउंट के थ्रू, याद करके या डायरेक्ट एडलेस नहीं करना। क्यों सर, टी अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, इसलिए कि अब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग भी दी हुई है, यानी कि एक्रूड ब्रॉट डाउन पिछले साल की लायबिलिटी भी दी हुई है आपको यहाँ पर, कितनी 3000, और पिछले साल की लायबिलिटी यहां भी दी हुई है आपको पिछले साल की, कितनी मेरे भाई 4000। ये पहले से डाटा दिया हुआ था, यानी ओपनिंग एक्रूड और ओपनिंग प्रीपेड भी दिए हुए आपको। तो फिर आपको ये अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, और इस फॉर्मेट के थ्रू आप ये इनकम स्टेटमेंट की बैलेंस शीट फिगर अब फाइंड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग के साथ ओपनिंग डाटा भी मौजूद है। आप टोटल कर लें डेबिट साइड का 5 और 4 9000 और 1000 कितना आ गया 10,000, उसमें से माइनस कर दें आप 3000 और 2000 5000, तो आपका कितना आ गया 5000 इज योर इनकम स्टेटमेंट फिगर। और ये फिगर अब आपकी जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, जो आप इनकम स्टेटमेंट में जाके लिखेंगे। ठीक हो गया जी। This is how we will prepare expense account, which may be any expense account, rent, salaries, printing stationery, advertisement, electricity accrual, anything. You will prepare this account in that way. Why we are preparing this account? We want to find the income statement figure. चलो तो पहले भी फाइंड करते थे, पहले accrued हम ऐड करते थे, प्रीपेड माइनस करते थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं क्लोजिंग के अंदर, लेकिन आप इस सवाल में ओपनिंग भी दिए हो सकते हैं आप। तो accrued ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे आएगा, ओपनिंग अगर दिया होगा लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट है, प्रीपेड ब्रॉट डाउन एसेट है इसलिए डेबिट पे आ जाएगा 4000 अगर ओपनिंग दिया हो तो, और फिर टोटल करके डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फिगर व्हिच इज 5000 इन दिस केस। बट जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें दी हो सकता है आपको इसमें से 2 चीजें दी हो, कोई एक ना दी हो, जो नहीं दी होंगी उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यू विल इग्नोर दैट। अगर क्वेश्चन में कोई चीज मिसिंग है, जैसे ओपनिंग एक्रूड नहीं दी है तो नहीं लेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। अगर क्लोजिंग नहीं दी हो तो नहीं लेंगे, ठीक है जी। ये लिख रहे हैं आप जरा, इसको लिखे मैं आगे बनाना इनकम अकाउंट। लिखे पे हम बनाते हैं आगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। This is how you prepare expense account in income credit cost, और ये स्टेप आपका है, हम बनाते हैं इसका इनकम अकाउंट। समझ आ गया आपको, दोबारा बताऊं जैन सा बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है सब जी बनाइए। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। समझ आ रही है आपको, ध्यान से आप नजर आ रही हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जी सर समझ नहीं लग रही क्या लो सिस्टम रिसोर्सेज may affect your audio quality. Try closing some applications to improve performance. क्या कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे लो सिस्टम क्वालिटी। जी
कुछ समझ नहीं लग रही सर, कुछ नहीं समझ लग रही। अगर हम खामोश हवा में तीर चल रहे हैं। हेलो सर जी। मेरे ख्याल में जो है ना क्लास जो है ना वो ऑफ करके दोबारा करता हूँ ऑन। ओके राइट, क्लास बंद करके मैं दोबारा क्लास ऑन करता हूँ। आप दोबारा ओके। ज्वाइन कीजिएगा जी, दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके ओके यार राविश देखो जरा कि ओके डिवाइस चल रही है, स्टक हो रहा है। जी सर। देखो ना डिवाइस चल रही है सर ना, हो रहा है, कुछ समझ नहीं बंद लग रही आप करो बोल क्या रहे हो। इसलिए हो रहा है, बंद करो इसको, जी सर, बंद करो हम लीव करके ज्वाइन करते हैं। मैं तो बंद ही नहीं कर पा रहा, यानी मैं इसको कैंसिल नहीं कर पा रहा, मेरा